Good morning, students. Today we will start our new chapter, Chapter 8, Determiners. A determiner is used before nouns to fix or define their meanings in some way or the other. एक डिटरमाइनर जो है वो नाउन्स के पहले यूज़ होता है ताकि फिक्स कर सके या डिफाइन कर सके उनकी मीनिंग्स को इन सम वे और द अदर, कुछ वे में, कुछ तरीके में या दूसरे तरीके से. Different kinds of determiners. A determiner may include articles such as a and the, demonstrative adjectives such as this, that, these, those, possessive adjectives such as my, your, our, his, their, interrogative adjectives such as what, which, whose, distributive adjectives such as each, every, either, neither, quantifiers or adjectives of quantity such as little, some, many, few, any, several. Articles. A and the are articles and they are used immediately before the noun. A or an is used before a noun to indicate it is one in number and is general and not special, whereas the is used before a noun to make it particular or special. ए और एन और द ये हमारे 3 आर्टिकल्स होते हैं और इनका यूज़ इमिडिएटली नाउन के पहले किया जाता है, जस्ट नाउन के तुरंत पहले. ए और एन जो है वो नाउन के पहले यूज़ होता है ये दर्शाने के लिए कि वो एक है नंबर में, सिंगल है मतलब, और वो जनरल है यानी कि स्पेशल नहीं है. वेयर एज द जो है, जहाँ तक द की बात है तो द हम नाउन के पहले यूज़ करते हैं उसे पर्टिकुलर या स्पेशल, खास बनाने के लिए, खास बताने के लिए. जैसे कि एग्जाम्पल, रोहित इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, ईटिंग एन एप्पल अ डे इज़ गुड फॉर हेल्थ, वी आर इन्वाइटेड टू द पार्टी. Now come, let's see demonstrative adjectives. Demonstrative adjectives, words like this, these, that, those are used before a noun to determine its position near or far. They are used immediately before a noun. वर्ड्स जैसे कि आपके दिस, दीज, दैट, दोज, ये सब नाउन के पहले यूज़ होते हैं डिटरमाइन करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए उसके पोजीशन को, कि उसका पोजीशन जो है वो दूर है या पास में है. दे आर यूज्ड इमिडिएटली बिफोर अ नाउन, यानी कि उनका यूज़ हम नाउन के तुरंत पहले करते हैं. दिस school is famous for its discipline. This is one example of demonstrative adjectives. These sweets are fresh. That building at the end of the lane is my house. Those boys are my neighbors. Now these are the examples of demonstrative adjectives you all have seen. Now let's see third, possessive adjectives. Adjectives such as my, his, your, our, their, etc. Adjectives such as my, his, your, our, their, etc. are used to indicate possession or belonging of the noun and are used before a noun in a sentence. पॉजिटिव एडजेक्टिव्स की बात कहें तो ये जैसे कि आपके माई, हिज, योर, आवर, देयर, ये जितने वर्ड्स आपके हैं ये सारे यूज़ करते हैं हम पोजीशन के लिए, टू इंडिकेट पोजीशन और बिलोंगिंग. किसी जो चीज़ हमारी बिलोंगिंग है, जिस चीज़ की हमसे, जो चीज़ हमारी है या जिस पर हम अपना पोजीशन, अपना अधिकार बताते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं. आर यूज्ड बिफोर नाउन इन अ सेंटेंस, और ये नाउन के पहले सेंटेंस में यूज़ होता है. एग्जाम्पल्स, माई अंकल्स हाउस इज़ क्वाइट फार फ्रॉम हेयर, आवर डांस स्कूल इज़ क्लोज्ड ऑन weekdays, देयर पार्टी वॉज वेरी नाइस, his bike is very expensive, your studies keep you busy. Now let's see the fourth one, that is interrogative adjectives. WH words such as what, whose, which are used before a noun in a sentence to ask questions related to the noun. इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स की बात कहें अगर हम, तो WH यानी कि जो आपकी WH फैमिली है, यानी कि क्वेश्चन वाली WH से शुरू होने वाले जितने वर्ड्स हैं, व्हाट, हुज, व्हिच, आर यूज्ड बिफोर अ नाउन इन अ सेंटेंस टू आस्क क्वेश्चन. किसी भी सेंटेंस में हम यूज़ करते हैं नाउन के पहले इन वर्ड्स को यूज़ करते हैं ताकि हम क्वेश्चन पूछ सके, कोई प्रश्न पूछ सके रिलेटेड टू द नाउन. What color suits me the most? For example,
whose name has been called out. Which shop should we go in? Now see, fifth one, that is distributive adjectives. Adjectives such as each, every, either, neither are used before a noun in a sentence to indicate each one of the noun. Each student was punished by the teacher. Every dog has its day. Either men may be required. Neither shop offers discount. Now let's see, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स का हम यूज़ करते हैं नाउन के पहले किसी भी सेंटेंस में ये दिखाने के लिए कि ईच वन ऑफ द नाउन, यानी उनमें से जितने भी हैं वो हर एक नाउन के लिए हम यूज़ करते हैं. क्वांटिफायर्स और एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी. Adjectives such as little, few, some, any, many, several, etc. are used before a noun to indicate the quantity or answer the question to what extent in a sentence. यानी कि quantifiers या adjectives of quantity भी इसे हम कहते हैं. इसमें little, few, some, any, many, several, etc. जो वर्ड्स हैं हम यूज़ करते नाउन के पहले ये दिखाने के लिए कि क्वांटिटी कितनी है या आंसर उन क्वेश्चंस के कि किस हद तक, अप टू व्हाट एक्सटेंट इन अ सेंटेंस कोई भी चीज़ है. नाउ सी एग्जाम्पल, I need little support of my friend. Many questions asked in the exam were really difficult. Few people strictly abide by the traffic rules. Give me some advice on how to improve my handwriting. Several people were injured in the road accident. Now here we have some confusing adjectives. For examples, we can see some are given here in the book. A few, the few. Now few, it is used before plural countable nouns. few का यूज़ हम plural और countable nouns के पहले करते हैं. it usually gives rather negative meanings. ये rather नेगेटिव मीनिंग ज़्यादातर संभावित रूप से हम जनरल वे में देख सकते हैं कि ये नेगेटिव मीनिंग जो है उसको जैसे कि देता है. इट सजेस्ट नॉट एज मच मेनी एज वन वुड लाइक और नॉट एज मच मेनी एज एक्सपेक्टेड और अ सिमिलर आइडिया. जब भी हम फ्यू की बात करें तो ये सजेस्ट करता है कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कोई चीज़ नहीं है या जितनी आवश्यकता है, जितना कोई चाहता है उतनी नहीं है. और नॉट एज मच मेनी एज एक्सपेक्टेड, जितनी हम आशा करते हैं कि कोई चीज़ हो या उस क्वांटिटी में नहीं होता. तो नेगेटिव सेंस जब होती है लाइन में मीनिंग में तो हम फ्यू का यूज़ करते हैं. और अ सिमिलर आइडिया या ऐसा कोई भी आइडिया जहाँ पे आपका एक नेगेटिव सेंस आता है कि जिस क्वांटिटी में हमें कोई चीज़ चाहिए और उस क्वांटिटी में वो चीज़ ना हो तो हम फ्यू का यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल, देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स हु सबमिट देयर असाइनमेंट्स इन टाइम. स्टूडेंट्स इज़ अ प्लूरल नाउन, गिव्स नेगेटिव मीनिंग हेयर. A few, it is used before plural countable nouns. It gives positive meaning. It suggests the idea like better than nothing or some at least, though not many. A few का यूज़ हम करते हैं plural countable nouns के पहले. जो भी आपके काउंटेबल नाउन्स होते हैं उनके पहले यूज़ करते हैं. ये पॉजिटिव मीनिंग हमें देता है सेंटेंस में. इट सजेस्ट द आइडिया, ये ऐसे आइडिया को दिखाता है, सजेस्ट करता है, सुझाव देता है ऐसे आइडियाज़ के बारे में जहाँ पे बेटर देन नथिंग, कुछ न होने से कुछ होना बेहतर हम जहाँ मानते हैं वहाँ हम अ फ्यू का यूज़ करते हैं. या सम एटलीस्ट, या कुछ हद तक कुछ है हमारे पास, दो नॉट मेनी, जबकि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ना हो कोई चीज़. एग्जाम्पल, अ फ्यू प्लेयर्स हु परफॉर्म्ड वेल वेयर प्रेज्ड बाय द कोच. प्लेयर्स इज़ अ प्लूरल noun, gives positive meaning here. The few, if we talk about the few, it is also used before plural countable nouns. It may give negative or positive meanings depending on the context. अब यहाँ हम the few की बात करें तो ये नेगेटिव या पॉजिटिव मीनिंग हमें देता है, डिपेंड करता है कि हमारा जो संदर्भ है यानी कॉन्टेक्स्ट जो है उसके अकॉर्डिंग हम इसको यूज़ करते हैं. इट सजेस्ट द आइडिया लाइक ऑल ऑफ देम दो वेरी फ्यू. ये आइडिया सजेस्ट करता है कि सारे के बारे में, लेकिन जो वो सारे लोग या जो सारी क्वांटिटी है, जो भी चीज़ है वो बहुत ही कम है.
Rohit uncle read the few novels that we had in our home library. Novels is a plural noun. This sentence gives both positive as well as negative meanings. Rohit uncle read all the novels that we had in our home library. Positive meaning here. There is no novel left in our home library for Rohit uncle to read. That is negative meaning here. That's all for today. Now we will continue our second part of this chapter in the next video. Thank you. That's all for today. All of you, please read this chapter and try to understand different kinds of adjectives. Thank you.